میں ٹی وی 99 کی طرف سے ٹاک ٹائم شو میں حاضر ہوں اور اس وقت ہم ایکٹن ہوٹل میں ہیں اور ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے جناب عابد صدیقی صاحب تلاوت قرآن پاک سے. ماشاء اللہ. ہم وہاں کھڑے ہو کے جیسے کھڑے ہو ادھر کیمرے کی بیچ میں آ جا علوی بھائی کیمرے کی طرف کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. تو ناظرین اب باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. یہاں جو یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا یہ پرویز اکرم شیخ صاحب جو کہ اس ہوٹل کے اونر ہیں اور انجم ضیاء صاحب جو کہ ایک مانی شخصیت جانی پہچانی شخصیت ہے. تو یہاں پہ جو کمیونٹی ایشوز ہیں اس حوالے سے کچھ پرابلم آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کیا بقیدگیز ہو رہی ہیں یا جو بنیادی ایشو ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کون سب سے پہلے بولے گا؟ نہیں میں وہ یہ نہیں سب سے پہلے یہ چلے گی ویڈیو. میں عرض کر رہا ہوں آپ بھول گئے سب سے پہلے یہ ویڈیو چلے گی تو خود ایشو ہے. اچھا ناظرین یہ سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں تو لیٹس گو ٹو واچ ویڈیو. بگننگ سے لگا. پاکستان اس ماں کا بچہ ہے جس ماں کا نام سندھ ہے. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں میں ہسٹوریکل فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. پاکستان کو بنانے والا اور انگریز کو پولیٹیکلی مجبور کرنے والا سندھی اور سندھ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح سندھ کے سندھی تھے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں انیشل ایڈوکیشن سندھ مدرسہ اسلام میں حاصل کی. قائد اعظم صاحب نے اور باہر دنیا میں پروونسز سب کانٹیننٹ میں تھے جہاں بہت سارے مسلمان لوگوں کی میجورٹی تھی, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح چوز سندھ اسمبلی for the resolution for Pakistan in 1940. کسی اور اسمبلی کا ریزولوشن پاکستان بنانے کے حق میں پاس نہیں ہوا. صرف اور صرف سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا جہاں پہ میجورٹی سندھی ممبران کی تھی. تھوڑے سے ایک دو فارسی تھے اور ایک دو ہندو تھے, باقی سارے مسلمان سندھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے. اس ماں کا بچہ ہے مس کر دیا تھا لیڈی نے. جس ماں کا نام سندھ ہے. میں اس لیے یہ
मजबूर करने वाला सिंधी और सिंध था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के सिंधी थे, वहीं पैदा हुए, वहीं इनिशियल एजुकेशन सिंध मदरसुल इस्लाम में हासिल की। कायदे आजम साहब ने और बाहर दुनिया में प्रोविंसेस सब कॉन्टिनेंट में थे, जहां बहुत सारे मुसलमान लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना chose Sindh Assembly for the resolution for Pakistan in 1940. किसी और असेंबली का रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनाने के हक में पास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, जहां पे मेजॉरिटी सिंधी मेंबरान की थी, थोड़े से एक दो पारसी थे और एक दो हिंदू थे, बाकी सारे मुसलमान सिंधी उस असेंबली में बैठे थे। अच्छा ठीक मैं है, गुजारिश कर सकता हूं? बता सकते हैं कि मैं बताने लगे बाद में हंगामा की सर बताने लगे क्या बताने वजह लगे है? कोई और बताना चाहेगा कि मैं बता नहीं, दूं? आप बताएं। अच्छा आप सामने आना। जी जी मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट सर। जो 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 मेरे इल्म में बात आई है, ये उधर ये वीडियो आप वो और भी चलो वो जिधर वो खड़े होते हैं आप इधर आ जाएंगे। ठीक सब गेस्ट इधर ही आए तो बहुत अच्छा है। सही है, सही, ठीक है, थैंक यू। जो मेरे इल्म में बात आई है ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं तो वहाँ प्रेजेंट नहीं जहाँ ये हंगामा हुआ, ये पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर जो मेरे इल्म के मुताबिक तारिकदार साहब के कंट्रोल में है, ये 2-2.5 साल पहले वीडियो मुजाहिद उमर साहब ने लगाई और इनको कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर पड़ा और रोक दिया गया कि ये वीडियो हटा दो, और अब ये वीडियो दोबारा लगी इस पर, तो मैंने देखी। इससे पहले जब लगी थी मैंने नहीं देखी, तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद अफसोस भी हुआ और मैं इसलिए ये सबके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। या वहाँ पे पूरा झगड़ा हुआ, फिर कोई मामला पुलिस में भी गया आगे, फिर उसको हशब किया गया, फिर दबाया गया, और जिसने पाकिस्तान के नारे लगाए वो कौन था कौन नहीं था मुझे नहीं मालूम, वो भी वीडियो में है। ये उसको, और ये जो जुल्फ़िकार रज़ा साहब थे वो जो बयान अपना दे रहे हैं वो भी खुद बोल रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो ब्रीफली मतलब ये जो भी हुआ है, दिस इज़ अ कंडेम्ड एक्ट, और इसको तारिकदार साहब बीइंग अ कम्युनिटी लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ, मेरे हिसाब से he is not at all a leader, neither he is elected nor he has been selected by a competent authority, ना कोई इलेक्टोरल कॉलेज बना, जितने भी इलेक्शनें होती हैं मस्जिदों के, कम्युनिटी सेंटर्स के, ये सारा ही बाबा आदम इसका निराला है। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। जी, अगर कोई और बोलना चाहे मैं शुरू करूँ। शुक्रिया। मेरा नाम परवेज़ शेख है। एक मिनट आप जी जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम परवेज़ शेख है और मैं इस होटल का प्रोप्राइटर हूँ जो कि तकरीबन 37 साल से बिज़नेस में है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ शिरकत की इस प्रोग्राम में और इसको कामयाब बनाया। अच्छा, अब मैं जो है ना वो गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो मसाइल हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना वो यही है कि कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं
اس ملک میں بہت سے ہیں اور مساجد بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان پہ قبضہ گروپ جو ہے نا انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ون آفٹر دی ادر. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا حساب دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں انجم ضیاء صاحب کا کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے ڈار صاحب کا جو کمیونٹی سینٹر ہے اس میں کوئی غلط جو ہے وہ ایکشن لیے جا رہے ہیں اور جو کمیونٹی کی جو اچھائیاں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. اسی حساب سے میں بہت سی مسجدیں ہیں انجم ضیاء صاحب جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، لیکن میں ہائی لائٹ جو کر رہا ہوں وہ ایکٹن ماسک ہے. الحمدللہ میں اس ایکٹن ماسک کا ٹرسٹی نہیں ہوں، میں فاؤنڈر ہوں اس مسجد کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگا کے 37 سال پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. تو اس کے بعد میں پہلا پریزیڈنٹ تھا اور اس کے بعد میں نے خود ریزائن دے دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. اس کے بعد 5 سال کے بعد ایک قبضہ گروپ آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو 35 سال سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور 35 سال سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جو یہ غیر قانونی طور پہ صدقہ اور زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار پاؤنڈ سالانہ، وہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، آپس میں بانٹ لیتے ہیں. جب کوئی حقدار آدمی آئے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ہم اعلان کر دیں گے کہ آپ کی مدد کریں. تو کتنی مدد ہوتی ہے؟ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ. تو یہ انتہائی بدنما داغ ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ میں ضیاء صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا، یہ تجربہ کار ہیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو میڈیا کے سامنے لے کے آئیں اور ان سے حساب لیا جائے، تاکہ یہ برائی جو ہے وہ کم از کم ایک مسجد سے دور ہو جائے. میں کسی کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں صرف اور صرف حق کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو برائی جو ہے وہ کم از کم ہماری جو یہ مسجد ہے اس سے یہ دور ہو جائے. شکریہ. جی وہ یہ سارا سوال سنیں. انجم صاحب جا رہی ہیں جانا چاہوں گی کہ میں لائیو ہوں ٹیلی ویژن پہ. آپ آنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی میں کہنا چاہتی جی پلیز پہلے جی ذرا ادھر بیٹھ جا ذرا. اسی جگہ کوٹ برا لگے گا. نہیں پہلے ٹھیک ہے. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے نام سے میرے کام سے آپ لوگ سب جانتے ہیں. بہت اچھا ہے کہ کمیونٹی ایشوز اٹھائے جاتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن پازیٹیو وے میں. پہلے تو ہم یہ فوکس کریں کہ آئے ہم اس ویڈیو پہ ڈسکس کر رہے ہیں یا ایکٹن کی ماسک کو لیے بیٹھے ہیں. اگر ایکٹن کی مسجد کا مسئلہ ہے تو پلیز ایکٹن کے مسجد کے امام یا کسی کو بلانا چاہیے تھا اس میٹنگ کے اندر. میں کسی کی ریاکاری یا بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہاں میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گی، یہ میرے نظر سے بھی گئی ہے اور یہ بہت پرانی ویڈیو ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے. تو یہ کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ تمام لوگوں کو، کہ میں اس ویڈیو کو کنڈیم کرتی ہوں. سندھ کی حالات، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، اور سندھ کے حالات، میں خود کراچی کی ہوں اور میں خود سندھ کی ہوں، تو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے. گالس اٹھی تو چلیں اردو میں بات کر، نہیں بات تو سچی یہ ہے کہ سندھ ہم سے ہے اور ہم سندھ سے ہیں. سندھ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. سندھ میں پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر سندھ ہے. تو سندھیوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے سب پاکستانی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، لاہور کے ہیں، کراچی کے ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، پٹھان ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے، کسی ایک کی ملکیت اور جاگیر نہیں ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہتے ہیں، ہمیشہ جذبات میں آ کے تقریریں کرتے ہیں اور بعد میں عوام سے معافی مانگتے ہیں. جب یہ پبلک میں آئے گی ویڈیو جو کافی پرانی ہے تو آئی ایم شیور کہ ذوالفقار صاحب معافی مانگ لیں گے اس بات میں. لیکن ہاں جس آدمی کے ساتھ برا ہوا اس نے اگر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے تو آج میرا بھی نعرہ یہی ہے، پاکستان زندہ باد. شکریہ جی، میں لائیو ہوں. تھینک یو جی، خدا حافظ، آل دی بیسٹ. جی پلیز. جی میرا نام محمد اقبال ہے. اچھا آپ ادھر جا کے تھوڑا سا ریاض صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں، میرے دوست ہیں، سب کچھ ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی ہے طارق ڈار کے بارے میں.
ये जो सेंटर है पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग का, मैं वहाँ का हूँ। ये तारिक डार साहब मेरे दोस्त है। ये जो सेंटर है ये सबसे पहले बरतानिया में सेंटर बना था और करामत हसन जो मेयर थे उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। अंजम साहब वहाँ पे सारे लीडर, प्रेसिडेंट जितने थे सारे लीडर जो भी आता तो मिलते करके, बशीर से डार थे जो उसके अंकल थे उन्होंने बनाया था। ये जो मस्जिद साथ इनका भी इल्म हाथ है। ये जितना कसूर है ये जिसके वो कहते हैं ना, ये इसका सबसे ज़्यादा कसूर है ये जो वो पहले तारिक डार साहब ने इलेक्शन कराए, बशीर डार साहब इलेक्शन कराते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि तारिक डार की बरादरी बहुत ज़्यादा है, उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसके मुकाबले कोई इलेक्शन लड़ नहीं सकता। जो खड़ा है वो हार जाता है, उस बेचारे का कसूर है। मैं जवाब देता हूँ फिर सर पे दूसरा ये जो वीडियो की आप कहते हैं ये बड़ी पुरानी वीडियो है। ये जो मिर्जा साहब है, अब मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करता, इन्होंने गलत बात की थी। वहाँ MQM के लोग खड़े हुए थे, इन्होंने उनके खिलाफ बात की, उन्होंने उनका जवाब दिया था। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग दी, इसलिए आप उन पर बुरा ना माने। अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्यों ने गलती की? अगर आपको कोई दुख हुआ है ना उस कम्युनिटी सेंटर से, नहीं, तारिक डार साहब का कोई कसूर नहीं। मुझे किसी बात से कोई दुख नहीं है, ना तारिक डार से ना कम्युनिटी सेंटर से। मैं तो कहता हूँ कि एक्टर मॉस्क हो, कम्युनिटी सेंटर हो तारिक डार साहब का, हैरो मॉस्क हो, दुनिया की कोई और मॉस्क हो, उसमें सारा काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो तारिक डार साहब का है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, जो उनको इलेक्ट करता है पूरी पब्लिक के सामने। ये बरादरी सिस्टम ही तो ख़त्म होना चाहिए। बरादरियों की मस्जिदें नहीं हैं। कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तान का है, बुनियाद कोई रखे, बुनियाद सदर रख जाते हैं, सदर चले जाते हैं, बुनियाद मेरे वालिद रख जाते हैं तो दुनिया से नहीं जीत सकता उसको नहीं। देखिए ये तो फिर वो बात, मैं आज कसूर तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। कम्युनिटी सेंटर बरादरी के नहीं होते। नहीं वो बरादरी नहीं है, वो इलेक्शन कराते हैं। सर मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आपके साथ चलूंगा मैं। नूर टीवी भी इलेक्शन कराता होगा, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करता है, हम लोग खामोश हो जाते हैं। जो टीवी पे होता है, सारे प्रोग्राम जो इस्लामी होते हैं, आप सारे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। क्या सारी चीजें इस्लामी हो रही हैं? क्या डार सेंटर की जिम्मेदारी नहीं थी उस दिन जब जुल्फिकार मिर्जा नारा लगा रहा था? तो क्यों नहीं खामोश किया डार सेंटर ने? क्यों नहीं खामोश किया आसिफ डार ने? ये अब आप मुझे नहीं MQM वाले हों या MQM का बाप हो, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, जुल्फिकार मिर्जा हो या जुल्फिकार मिर्जा का बाप हो या मेरा हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्यों तो वो उसने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं आवाज उठाई? कम्युनिटी का हेड था, बरादरी का। सर अभी आप खुद कह रहे हैं आगे चले सर, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। यू टोल्ड मी कि उसकी बरादरी है इतनी बड़ी, और एक जुल्फिकार मिर्जा आके उस कम्युनिटी सेंटर में पाकिस्तान के नाम से गलत बात करता था। आप कहते हैं तो आसिफ डार ने रोक रहा तो मैंने रोकना? मेरी तो बरादरी नहीं है, मेरे साथ तो आप भी साथ नहीं देते, आप भी पीछे हट जाते हैं। नहीं मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ थोड़ा सा आगे चलिए जी प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे जज्बात हैं, मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया जी। कोई और साहब बोलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोइन नवाब है और मैं भी एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ, कोई बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ। यहाँ हमारे साथ जनाब नवीद साहब खड़े हैं, बड़े सीनियर हैं हमारे। हालात देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है वो वीडियो भी दिखाई गई है, उसको भी मैंने पहले भी देखा है, और यहाँ पर जो है मसाजिद के हवाले से जो बात हुई है उसको भी मैंने सुना है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हम मतलब चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है, और उसमें हमारा समझ लें कि 10, 12, 15 लोगों के अंदर ही हमारा आपस में इख्तलाफ इस वक्त हो गया है, तो फिर हम कैसे पाकिस्तान को कैसे यूनाइट कर सकते हैं जहाँ पर 20 करोड़ आवाम है। मेरे लिए जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं वो भी इतने काबिल एहतराम हैं जितने मेरे लिए अल्ताफ़ भाई हैं, वो भी इतने काबिल एहतराम हैं। ठीक है, जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है सियासी तौर पर जो है वो कुछ MQM के साथ उनकी रंजिश रही है, वो कुछ उनको कहते रहे हैं, कुछ कहते रहे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो है वो भी उतने ही मुहिब वतन हैं जितने जुल्फिकार मिर्जा जो है सब मुहिब वतन है, कोई पाकिस्तान का गद्दार नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि सियासी इख्तलाफात हैं, पार्टियाँ बनी हैं, किसको पावर चाहिए, नहीं ये खत्म करने में इसका जवाब किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ रही बात जो है उन्होंने कहा जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कि पाकिस्तान जो सिंधी ने बनाया था, यकीनन पाकिस्तान सिंधियों ने बनाया था, लेकिन सिंधियों के साथ पंजाबी भी थे,
اردو بولنے والے بھی تھے, پشتو بولنے والے بھی تھے, بلوچی بولنے والے بھی تھے, ہر زبان کے لوگ تھے جنہوں نے بنایا. اس میں وہاں پر ہمارے جو اس وقت کے جو کرسچن جو لوگ تھے وہ بھی تھے, بنگالی بھی تھے, وہ تھے, ٹھیک ہے. اور اگر بات ہو کہ کہاں سے کس نے بنایا تھا, تو سب سے پہلے میں تاریخ تھوڑی سی آپ کے سامنے دہرا دوں کہ دیکھیں جی سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ابتدا کی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے, وہ غلامی سے نہیں نکل سکتے. تو یہ سر سید کا فلسفہ تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ جب وہ علم حاصل کریں گے, ایجوکیٹ ہو جائیں گے, تو قانونی طریقے سے جو ہے وہ جنگ لڑ کے انگریزوں سے ملک لے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جب پہلی آواز جو اٹھی تھی پاکستان بننے کی وہ علی گڑھ مسلم مدرسہ تھا, پھر کالج بنا ہے, پھر یونیورسٹی بنی ہے. تو سب سے پہلی جو ہے آواز جو اٹھی ہے, تو اگر کریڈٹ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو میں سر سید احمد خان کو کریڈٹ دیتا ہوں. اور اس کے بعد علی گڑھ کے جو اسٹوڈنٹ تھے, طلباء تھے, جن میں مولانا محمد علی جوہر بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے نام ہیں, ان لوگوں نے جو ہے بنایا پاکستان, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں 1929 پہ جو الہ آباد میں جو اجلاس ہوا تھا, الہ آباد کے جو اجلاس تھا مسلم لیگ کی جہاں بنیاد رکھی گئی تھی, مسلم لیگ کی بنیاد بنگال میں رکھی گئی تھی, نہ سندھ میں رکھی گئی تھی, نہ پنجاب میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے بنگالیوں نے آواز اٹھائی تھی, اور الہ آباد کا جو اجلاس ہوا تھا اس کی صدر علامہ اقبال نے کی تھی جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. لیکن علامہ اقبال نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا میں پنجابی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا جو نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک ملنا چاہیے. اس لیے یہ کریڈٹ جو ہے کہ پاکستان کس نے بنایا, پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں نے بھی بنایا ہے, اور اس خطے میں رہنے والے جو نان مسلم تھے, جو کرسچن تھے, انہوں نے بھی بنایا ہے. اور ہمیں یہ ہے کہ آپس کے اختلافات بلانے چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار مرزا صاحب کو, اور میں سلام پیش کرتا ہوں الطاف بھائی کو, سب محب وطن ہیں. اور پلیز کوئی کسی پہ کرٹیسائز نہ کرے, بلکہ ہمیں مل جل کے آپس میں اختلافات بلا کے ایک یونٹی قائم کرنی چاہیے اور پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے. جی, بات محب وطن کی, الطاف صاحب کی یا ذوالفقار مرزا کی نہیں ہے. بات دو طرف سے ہوتی ہے, یا قانون سے یا کسی ایکسپیرینس سے آدمی کسی کو دیکھتا ہے. ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے 3 لاکھ لائسنس دیے, وہ مانتا ہے تو آپ اس کو محب وطن کہتے ہیں. بات الطاف بھائی کی نہیں ہے. اگر الطاف بھائی محب وطن ہے تو پاکستان میں جائیں نا, ہمیں کیوں مارنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, ہمیں سب کچھ کہہ دیتے ہیں. آپ الطاف بھائی بھی محب وطن ہیں, میں بھی محب وطن ہوں, آپ بھی محب وطن ہیں, اسائلم بھی یہاں لیتے ہیں جب دل کرتا ہے, جب دل کرتا ہے پاکستان کا پاسپورٹ بھی مانتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہوگی. اوتھ کی وائلیشن ہے یہ جو الطاف بھائی کرتے ہیں, اوتھ کی وائلیشن ہے جو ذوالفقار مرزا کرتا ہے, اور جو اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے وہ محب وطن نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ اختلاف نہیں, یہ معاملہ ہے قانون کا. یہ 2 بیرسٹر بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ محب وطن ذوالفقار علی بھٹو بھی محب وطن تھا, اوتھ کی وائلیشن کرو, جنرل اس کو پکڑ لو مشرف کو, اور باقی ساروں کو چھوڑ دو. اوتھ کی وائلیشن جو بھی کرتا ہے وہ محب وطن نہیں ہے, اور ذوالفقار مرزا بھی اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے, اور الطاف بھائی بھی کرتا ہے. اور اگر مولانا صاحب آپ کریں گے تو آپ بھی نہیں ہیں, میں کروں گا تو میں بھی نہیں کروں گا. میرے قابل احترام ابو بھائی نے الطاف بھائی کو کہہ دیا کہ انہوں نے اسائلم لیا ہوا تھا. دیکھیں میرا باپ پنجابی تھا, میری ماں بھی پنجابی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں کراچی میں پیدا ہوں اور 47 سے میری فیملی کراچی میں رہتی ہے. اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں نعرہ لگایا کہ ہم پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, سندھی ہیں. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پاکستانی کہتے ہیں. الطاف بھائی کی جو بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں الطاف بھائی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے. الطاف بھائی نے جس وقت ایم پی ایم بنائی ہے, آپ کراچی سے نہیں ہیں, میں کراچی سے ہوں, مجھے پتا ہے کراچی میں اردو بولنے والوں کو کس انداز میں بلایا جاتا ہے. کراچی میں کوئی ان کو مہاجر کہتا ہے, کوئی ان کو مٹروا کہتا ہے, کوئی ان کو پتہ نہیں اللہ معافی دے کون کون سے نام ان کے لیے لیے جاتے ہیں. اور وہ سب سے زیادہ پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اردو بولنے والا جو کہ کراچی میں ہے, جنہوں نے پاکستان کو ڈیولپ کیا. جہاں سے آپ کا اسٹیٹ بینک چلا, آپ کے سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر کون تھے, سندھ سے نہیں آئے تھے, ظاہر حسین ہندوستان سے آئے تھے, ٹھیک ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ کبھی نہیں, آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ کبھی نہیں کہہ سکتے. کراچی میں ہماری بندرگاہ ہے, آپ کو کیا پتا کہ بندرگاہ میں جتنے شپس ہیں ان شپس کے کیپٹن کون تھے, کوئی پنجابی نہیں تھا. تمام بامبے سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ تمام کراچی پورٹ کو وہ رن کر رہے تھے, شپنگ کمپنی کو وہ رن کر رہے تھے. انہوں نے نیوی میں کیپٹن کی بات کی, نیوی میں کمانڈر
लीजिए, आपने उर्दू बोलने वालों को हमेशा जो है लो समझा, आप उनको मुख्तलिफ नाम देते रहे हो, आप उनको हमेशा आज तक आप उनको हिंदुस्तानी कहते हैं। आप क्यों हिंदुस्तानी कहते हैं? आप कहते हैं जब वो पाकिस्तान नहीं थी, पाकिस्तान में वो जब पाकिस्तान में रहते हैं, वो जब आप कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, आप आज भी जब कोई बात होती है आप कहते हैं जी मेरी ये बहू पंजाबन है, ये मेरी बहू पठानी है, ये मेरी बहू जो ये महाजिर है, ये इंडियन है, ये आप खुद कहते हो। कभी किसी ने बोला है कि ये मेरी बहू जो ये भी पाकिस्तानी है? उसकी शनाख्त क्या है? उसको शनाख्त आप खुद देते हो। इसलिए अल्ताफ भाई ने जब उस वक्त बहुत ज़्यादा एहसास में जो महरूमी था कराची के लोगों में, और मैं कराची के अंदर उस वक्त खुद स्टूडेंट था जब उन्होंने ये चीज़ बनाई है, अंडर 50 पे जाके लोगों के पास जाके किस तरीके से उन्होंने ये तहरीक बनाई है, किस तरीके से तहरीक चलाई है, और गरीब लोगों को पहली दफ़ा MNA और MPA बनाने वाली जो MQM है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस वक्त सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ वो अल्लाह जनरल सेक्रेटरी फौत हो गए, आपने सबसे पहले MQM के 2 टुकड़े किए, एक आपने हकीकी ग्रुप बना दिया, एक आपने MQM बना दिया। उनको आपस में लड़वा के भाई को भाई से लड़वाया गया और मरवाया गया, और बेशुमार जनाजे उठाए गए। मरने वाला जो था वो भी उर्दू बोलने वाला था, और मारने वाला जो था वो भी उर्दू बोलने वाला था, और बाकी दुनिया तमाशा देख रही थी। और फिर आपने इतना मजबूर किया उनको कि वो पाकिस्तान से जाने पे मजबूर हो गए। आज आप देखें, आपने कहा कराची के अंदर जी इलेक्शन करवाओ, फौज की मौजूदगी में PTI ने कहा कि इलेक्शन करवाया जाए, फौज बैठेगी। आर्मी ने जब इलेक्शन किया, अल्ताफ हुसैन के जो इलाके में इलेक्शन हुआ, 85,000 या 90,000 वोटों से वो जीता। वेरी गुड। कराची के पूरी कौम ने उनको वोट दिया है, उनका साथ दिया है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमें अलग सूबा चाहिए, सूबे की डिमांड तो सबने की है, हज़ारा में जो रहने वाले लोग हैं वो भी सूबे की डिमांड करते हैं। और अल्लामा तारिक कादरी साहब कहते हैं, इमरान खान कहते हैं, हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान में जो है 18-20 सूबे बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें कराची में एक अलग सूबा बना दो, आप फौरन कहते हो जी वो तो गद्दार है, वो तो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करता है, वो फलाना करता है। तो जिस वक्त इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने, ये मीडिया पे है, जिस वक्त इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कहा कराची में हमें अपना सूबा बना दो, उसके दूसरे दिन आपने जो कराची की पुलिस थी उन्होंने बुक्स निकाल के मीडिया में दिखा दी, देखें जी ये रॉ के एजेंट हैं, ये फलाने एजेंट हैं, ये ढिमकाने एजेंट है। पहले वो बुक्स क्यों नहीं निकली? वो उसी दिन जिस दिन उन्होंने डिमांड की, उसके दूसरे दिन जो राव अनवार हैं जो पुलिस के, उन्होंने बुक्स दिखा दी। उसके बाद ये कहा गया ये पुलिस वाला है, इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए था, सियासी बयान नहीं देना चाहिए था, वक्ती तौर पर इसको हटा दिया गया। भाई आपने मजबूर किया है, आपने उनको इतना दबाया है, इतना दबाया कि वो चीखो पुकार करते हैं। लेकिन आप उनको कभी गद्दार कह देते हैं, कभी आप उनको फलाना कह देते हैं, कभी आप उनको चोर कह देते हैं। उनको आप मौका दीजिए, वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में रहे बहैसियत पाकिस्तानी। उन्हें गद्दार ना कहें, वो पाकिस्तानी मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, जो टॉपिक है ना वो है कम्युनिटी इशू, और यहाँ के यही मैं आपको पहले बता दूं कि ये बिल्कुल वो हमारी आपने सबसे पहले पता क्या, आपने अंजुम साहब ये आपने इतने लोग बुलाए हैं, हमें भी बुलाया है, और उसमें ये है मेरी बात सुने कि आपको पहले चाहिए था कि जो ये इशू है आप इनको ब्रीफ करते, ठीक है, वो आप। और दूसरा ये कि ये जो पॉलिटिकल जितनी भी ये डिस्कशन हो रही है ये हम नहीं चलाएंगे। आप नहीं चलाएंगे, टीवी पे चलेगा। सर मेरी बात सुनिए, जो यहाँ पे कम्युनिटी इशू है ना, वो कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई मस्जिद है, जैसे ये लिखा हुआ है, जो यहाँ के कोई रोड वर्क्स है, कोई स्ट्रीट है, कोई स्कूल का है, कोई बच्चों को कोई भी जहाँ हमारे जो कम्युनिटी को है जो फेस कर रहे हैं, आप उसके बारे में अभी आपने क्या कहते हैं इनको बोलने से सबको एक सेकंड, वो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ जो यहाँ के इशू है ना जो हम लोग फेस कर रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम आप करें नहीं बना, आज डिफरेंट टॉपिक है, ये उस दिन नहीं बना कि बच्चों के स्कूल में क्या होती है, दूसरा इशू है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ना बोलूँ। सर आज इशू ये है कि हर एक को इजाजत है बोलने की 10 मिनट के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, नहीं मैं लास्ट में बोलूंगा, अगर मुझे इजाजत देंगे मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं 15 दिन के बाद बोलूंगा, और हर नहीं मैं पहले सबको इजाजत दें। मुझे बताइए कौन बोलना चाहता है, आप ले सकते नहीं वो नहीं आप भी बोले, आप फ्रॉड होएगा, खत्म होएगा पाकिस्तान डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद अलवी है।
मेरा काम एक तरह से फायर ब्रिगेड की तरह का है कि जब किसी मजमे में गुस्सा आता है या इख्तियार पैदा होता है तो मैं उसको ठंडा कर देता हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं एक तरह का फायर ब्रिगेड हूँ। मौसूफ ने इब्तिदा में कुरान हकीम की जो आयतें पढ़ी थी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह करूँ। आयत करीमा ये थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान तुम खसारे में रहोगे जब तक के तुम ईमान न लाओ सिर्फ दिल से और अमल सालिहात न करो। फिर ये भी काफ़ी नहीं है दो चीज़ें, आगे हम पे और फराइज़ आयद किए जाते हैं। तो फरमाते हैं कि वतवासौ बिलहक़, जो अभी मेरे मौसूफ ने कहा था हक बात करो, और जब आप हक बात करने जाते हैं तो आप पर मसाइब भी आते हैं और आएंगे, और ये आपका इम्तिहान होगा। तो जब आपके ऊपर मसाइब आए हक बात कहने के लिए तो सब्र करो, वो सब्र होगा, वो सब्र अजीम है, वो सब्र जमीला है। तो हमको तलकीन की है कि जब तुम हक बात करो और कोई तुम्हारी मुखालिफत करे, जैसा कि आप मौसूफ ने फरमाया था कि हक बात करो, सूरह यासीन में भी यही है कि वतवासौ बिलहक़। तो हक बात करने पे हमेशा आपके ऊपर आफत आती है, और यही हम लोगों ने जिन्होंने कि पाकिस्तान शुरू में बनाया था, कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने हक बात की थी, लेकिन उन्होंने एक बात ये नहीं कि सौब नहीं किया, या किया तो मौसर नहीं था। तो सौब के मतलब ये है कि आप अपने दोस्त अहबाब को नेकी की तलकीन करें, और जैसे कि इंसान वसीयत करते हुए मर जाता है तो आप अपने औलाद को, अपने करीब अकरबा को ये वसीयत करें, ये सौब करें कि तुम हक बात करो। अगर हम ये करते होते तो आज हम पे ये मुसीबत नहीं आती। मुख्तसर ये कि मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ एक बात कहूँगा। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बीमारियों का एक हल पेश किया है, और कमाल फ़न ये कि सिर्फ 3 अल्फाज में वो हल पेश किया है, सिर्फ 3, ज़्यादा नहीं। वो कौन से 3 लफ्ज़ हैं? अगर हम उन पे अमल कर जाएं तो उम्मत मुस्लिमा की सारी बीमारियां हल हो जाएंगी। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, पहले मैं वो 3 अल्फाज बता दूँ आपको। वाओ ला नहीं सफर।
अल्लाह ताला ने कहा कि तफर्रुक मत करो। तो हमारे साथ आलम यह है कि हम जिस मजमे में छोटी मोटी बात करना शुरू करते हैं उसमें तफर्रुक पैदा होता है, ये मत करो। अच्छा, अब रहा ये कि पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुस्लिम का एक फर्द है, एक बच्चा है, तो बाकी बच्चों की तरफ तो आप तवज्जो देते नहीं। तो वालिदैन को अपने तमाम हर और जितनी औलाद है उसके साथ मसावत का सलूक करना चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए। अगर आपको एक जख्म यहाँ हो तो सारे जिस्म में दर्द होता है। तो अगर उम्मत मुस्लिमा का कोई और मुल्क पाकिस्तान के मासिवा सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया उसको तकलीफ पहुंची है तो आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं आप? हम करते ये हैं कि ये मसलों को लेकर गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, बरतानिया के पास जाते हैं, फ्रांस के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे इन मसलों का हल करो। ये ऐसा है जैसे कि एक अगर दो बकरों में लड़ाई हो तो वो भेड़िए के पास जाए और कहे कि भाई हमने ये तफर्रुक है इसको हल करो, तो वो भेड़िया दोनों को ही खा जाएगा। हम हमारे इस्लामी ममालिक क्यों नहीं मुत्तहद होके आपस में दो मुसलमानों में अगर लड़ाई हो तो उसको सुलह कराना कुरान हकीम की हिदायत है, हदीस की हिदायत है। और मैं इस वक्त हदीस का रावी नहीं दे सकता, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल आए तो किसी सहाबा जाने के बाद पूछा कि आपको क्या बताया? उन्होंने कहा मुझे ये बताया कि आप मेरी उम्मत जो है एक ज़माने में इख्तिलाफ में पड़ जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या होगा? तो हज़रत जिब्राइल ने बताया कि इसका हल ये होगा कि कुरान हकीम में इसका हल आया है और वही आपका हल है। अस्सलाम वालेकुम। कोई फीमेल नहीं फरीदा तो आप फरीदा आप इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मिसेस अंसारी के नाम से जाना जाता है। अजमेर में रहती हूँ और काफ़ी ये जो यहाँ के मसाइल हैं उनको देखती हूँ। तो आज जो अंजुम साहब ने जो ये मीटिंग बुलाई है बहुत अच्छी बात है। बड़ी शर्म की बात है ये है कि यहाँ की मॉस्क में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों ने जो ये मसला यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं, तो मेरा ख्याल ये कि पॉलिटिकल बातों को तो छोड़ दीजिए, जो ये मसला इसको ज़रा तय कीजिए। और एक ये पेपर भी उन्होंने दिखाया समझिए कि 25,000 to 30,000 पाउंड इलीगली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। मेरा तो एक नाक़िस सा मशवरा ये है जो भी ज़कात की सूरत में किसी सूरत में कि इसका प्रूफ ला कर और कम से कम इसको परस्यू किए जाए आगे। मैं तो ये समझ रही हूँ। और अगर एक मॉस्क से उसमें हम सब लोग आपका साथ देंगे, अगर ये बात सही है हम साथ देंगे आपका। इसको पेपर में आना चाहिए, इसको मीडिया में आना चाहिए और इसको सबको यहाँ पर इसका अवेयरनेस दिलाए कि देखिए मॉस्क में हो रहा है, मॉस्क में काम नहीं होना चाहिए। तो जब एक मॉस्क में आप ये उसको अपेरेंट कर देंगे तो नेचुरली दूसरे जो मॉस्क वाले हैं वो भी ज़रा कुछ इससे खाइफ होंगे कि यहाँ पर ये काम ऐसा सीधा टेढ़ा था सीधा हो रहा है। तो मैंने और मॉस्क में भी सुना है, ये आपके हेरो मॉस्क में भी मसला हो रहा है। और शर्म की बात है वहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। तो मैं तो सब लोगों से कहूँगी कि देखिए ये इस्लाम ये जो मॉस्क में जो हो रहा है, जब वो पुलिस बुलाई तो वो एक जूश था, वो कहने लगा कि तो आप तो मुसलमान लोग हैं, मैं क्या करूँ आपका, आप तो आपस में दोनों लोग खुद ही लोग मुसलमान लड़ रहे हैं, तो हम लोग तो अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हैं। तो मेरी तो आप गुजारिश आपसे ये है कि ज़रा इस वक्त तवज्जो दें कि ये मॉस्क का जो मसला है उसको उठाएं और उसको कैसे हम लोग आगे लेके जाएं, इसके मुताबिक बात की जाए। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए।
बहुत हम लोग उस पे अपना सर धुन चुके हैं। वहाँ के लोग बेशर्म लोग हैं, वहाँ कुछ असर होने वाला नहीं, किसी पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। वो पाकिस्तान इस तरह चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला वहाँ पर लोगों को अक्ल दे, वहाँ के लोगों को ज़रा ये जो आप आज के जो करप्शन है और जो बातें उनसे उनका दिल को बेजार कर दे, अल्लाह ताला रहम करे उसके आगे। बस मैं तो ये कहूँ। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Rita. I'd just like to raise the issue on the Acton Mosque and many other mosques in and around the country in the UK. It is very sad that we as Muslims gathered here today and the ones who are not present here with us today have to face these issues. It's very embarrassing for us as a community living inside the UK with other multinational communities that our issue always gets raised up and highlighted in the news. Mosques should have a clear system where they should be able to help. The funeral arrangements should be done, not when a deceased has died, then we all get a message on our phones that we have to raise funds immediately for the deceased. That is very sad. Mosques should always have sufficient funds available in hand for the deceased, because it's a humiliation for the deceased as well as for the community. That's all I'd like to say. जैसे कि मेरी बहन ने अभी जिक्र किया है, दूसरी बहन ने भी जिक्र किया है कि ठीक है कि पॉलिटिकली जो है मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये जो मुल्क है, ये हमारा जो जिसका नाम यूनाइटेड किंगडम है, ये हमारा घर है। हम यहाँ रहते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो यहाँ के मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनका हल किया जाए, ताकि ये हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं। ये मुल्क जो है ये इस वजह से यहाँ पहुँचा है कि इनके जो बड़े लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग गुजर गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की इन गुड फेथ, जिसका बेनिफिट जो है ना वो हम लोग भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि ये जो मसाजिद के मसाइल हैं उनके लिए एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर इन्हिसार है कि भाई आप मेरा साथ देते हैं या नहीं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उसको सब मिल के उसको सपोर्ट करें। वॉच डॉग सब उसको मिल के, जिसको वॉच डॉग भी आप कह सकते हैं, हाँ, लेकिन यह है कि ये सबका मुश्तरका मसला है, सबको मिल के हल करना चाहिए। Exactly. ये एक्टन मॉस्क एक पहली मॉस्क नहीं है, बहुत सी मस्जिदें जो हैं उनमें कब्जा ग्रुप जो है ना वो उस पर काबज़ हैं और वो पैसे का जो है ना वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग इस मीटिंग के बाद मिल के जो है ना एक दूसरे के जो है नाम और पते जो है ना वो एक्सचेंज करें और दोबारा जो है ना वो मीटिंग बुलाई जाए और इस पर मज़ीद अमल किया जाए। और फिर वही है कि भाई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इलेक्टेड हो और वो हिसाब वो ले। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सब मेरे साथ मिल के नज़रात मेरे साथ शुक्रिया। भाईजान इनको भी ज़रा टाइम देंगे, हमारे बुजुर्ग हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी समझाए दे इस मौजूद तक करो दुनिया नहीं, कोई समझाने की लोड़ नहीं, मेरे बुजुर्ग ने मैं समझा नहीं कोई नहीं, सारे मसले कम्युनिटी के मसले ही हैं। मैं जैसे हमारे बुजुर्ग ने पहले भी किया है, आप सबसे गुजारिश की है, कुरान मजीद की जो आयत है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अपने में तफरका मत डालो।
अपने में तफरका मत डालो। ये याद रखिए कि कभी भी कहीं पर भी अगर कोई बात हो रही है तो पहले आपके पास उसके सबूत है या नहीं है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हम बच्चों को मदरसे में जो तालीम देते हैं, जो हम 6 कलमे सिखाते हैं, उनमें क्या सिखाते हैं कि किसी के ऊपर तोहमत ना लगाओ, किसी के ऊपर ऐसी गलत बात ना कहो, समझा, किसी, ये तमाम चीज़ें। आजकल कल्चर ये बन गया है कि हमारे पास बाज़ वक़्त लोग ये होता है कि बिला किसी सबूत के लोगों के ऊपर तोहमत लगा देते हैं। और अगर आप कुरान मजीद में सूरह नूर पढ़ेंगे, उसकी तिलावत करेंगे तो उसमें उसकी सजाएं मौजूद हैं। तो ये याद रखिए कि विदाउट एनी प्रूफ एंड एविडेंस यू कैन नॉट accuse anyone at all, and you cannot put any allegations upon them at all. Therefore, make sure that one of the rule of thumb for every Muslim is to make sure that they always maintain a respect for another Muslim. Al-Muslimu aqul Muslim. हुजूर अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो उसमें होगा ये कि अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि 25 से 30 हज़ार रुपए जो है पाउंड जो है वो दिए जाते हैं सदक़ात और ज़कात, तो आप उसके लिए उनसे मालूमात कर सकते हैं कि भाई ये किन लोगों के लिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, उसके तमाम चीज़ें। दूसरी बात ये है कि ये याद रखिए कि यहाँ पर चैरिटी कमीशन से अगर कोई चैरिटी रजिस्टर्ड है तो उसमें जो ट्रस्टीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हर साल उनको अपने अकाउंट्स जो है सबमिट करना पड़ता है, जिसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। और वो चैरिटी कमीशन में जो अकाउंट जाते हैं, आप खुद उसके ऊपर जाइए और अपने जो है वेबसाइट पे देखिए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल ये एक कल्चर बन गया है मुसलमानों के अंदर कि फितना और फसाद जो है वो मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर में एक नॉर्मल चीज़ हो गई। मगर ये याद रखिए कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो बात बताई है उसकी जो है हमको हर वक्त इस बात का ख्याल रखना है। मेरे और आपके आकाए नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत आला है, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह। समझा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पीक ऑफ द गुड मैनर्स है। और हमारे पास ये है कि विद आवर इमोशनल ब्लैकमेलिंग वी ऑलवेज लूज आवर इमोशंस एंड एक्साइटमेंट, ब्रिंग अस डाउन in such a way that we have forgotten about the respect of others as well. तो हमको जो है अखलाकी एतबार से, हमको मेयारी एतबार से और जो है माशरती एतबार से हमको ये करना चाहिए कि हमारे हर मामले के लिए अल्लाह ताला ने हमको एक तरीक़ा ज़िंदगी बता दिया है और हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको दे दिया। इसीलिए आप देखिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, वहाँ पर आप जाइए तो वेलफेयर सिस्टम में वहाँ लिखा हुआ है, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं तो इट सेज उमर्स लॉ। समझा? हमारे बैरिस्टर साहब अभी बात कर रहे थे, उनको मैं याद दिला दूं कि इन्होंने बैरेट लॉ जिन लोगों ने यहाँ पर किया है, जो बैरिस्टर हुए हैं, अगर वो लिंकन इन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि द बेस्ट लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है और उसमें किसका नाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है। तो आप लोग जो है यू आर वेरी लकी दैट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एन उम्मती ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट व्हाट यू नीड टू डू इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, मेरी ये गुजारिश है आप तमाम से कि आज एक कमिटमेंट कर ले कि इंशाअल्लाह हम एक कुरान मजीद की आयत तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तो दैट विल बी द एनलाइटमेंट फॉर यू। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न थी हाल की जब अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी जो अपनी बुराइयों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा।
समझा। आज हमारे पास मुसीबत ये हो गई है कि हम हर एक के जो है मामलात में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हाल है और किस तरीके से क्या मामलात हो रहे हैं। हाँ, सारी दुनिया के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जब मुसलमान सही हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर जगह जो मुसलमान का अपना रहना जो है, यहाँ पर भी इस मुल्क में भी, वो भी एक तबलीग का जरिया बनेगा, एक जो है तालीम का जरिया बनेगा। और हमको जो है हम जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली हर हमारे जो है एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमको प्रेजेंट करना है कि वी मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ एन उम्मती ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही वाज द फाइनल प्रॉफिट, देयर विल बी नो अदर प्रॉफिट आफ्टर हिम। और ये है तो इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश आप तमाम हजरात से ये है कि किसी भी मजलिस में आए, कहीं पर भी आए, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो है ये आपके जहन में ना हो कि मैंने जो है देखो कैसी बात की, उसकी कैसी बेइज्जती की, मैंने कैसे उसको नीचे दिखा दिया, मैंने उसको कैसे वो कर दिया। कितनी प्यारी बात हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तुम्हारे एक एक सेकंड का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तुम जब सांस लेते हो तो उसके करम से लेते हो, जब सांस छोड़ते हो तो उसके रहम से छोड़ते हो। तो एक सेकंड में हमारी जिंदगी इधर से उधर हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी अपने अंदर से हर किस्म की नफरतों को निकालें, मोहब्बतों को पैदा करें। अगर आपको किसी के साथ कोई मामलात है, अगर किसी कम्युनिटी के सेंटर्स के साथ है, किसी मसाजिद के साथ है, तो बराए मेहरबानी वहाँ जाके शोर शराबा करने के बजाय आप कमेटी वालों के साथ ये मामला तय करिए कि हमारे पास से 2 साथी आएंगे, 3 साथी आएंगे, आप अपने पास से 3 साथी दे दीजिए, हम जो है बैठकर जो है इन मामलात को सही करेंगे। और ये हमारे लिए जिंदगी का तरीक़ाकार होना चाहिए। और जो मैं कह रहा था कि यह यहाँ पर स्वीडन में क्या है हुआ कि जो है वो उमर्स लॉ लिखा हुआ है वहाँ पर, जो वेलफेयर स्टेट सिस्टम है, वो जब एप्लीकेशन देते हैं, क्यों? क्योंकि इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड नोज फॉर वेरी वेल that the best administrator who was trained by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala anhu. Therefore, local council, local council है, central system है, administration है, census है, constitution है, ये सब जो है it roots back to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एंड लैक ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेनेवर यू आस्क एनीबॉडी दैट यू एलोकेट टाइम टू अंडरस्टैंड हु यू आर and what you are and how you would be able to present yourself as a Muslim in all walks of life, they don't have the time for anything. They have got the time to waste their time for other things, but nothing to learn about the Islam, learn about the guide for the whole of mankind is no one other than Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये है कि जब हमारे अंदर जो है एक्सट्रीम लव ऑफ अल्लाह आएगी और एक्सट्रीम लव ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगी, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये याद रखिए। The love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the condition of part of your ईमान बिर रसूल। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और आज सबसे बड़ा जो है ट्रेजेडी यही है कि इसी में हमारी वीकनेस है। बिकॉज ऑफ दैट throughout the world you will see what is happening with the Muslims. Once they inshallah return back to the right way of life, then that would be the day inshallah which will bring them back together to be a Muslim, and they would be able to work along with all other communities. We do not have the message to create any kind of hate for anyone. It is love for everyone, hate for no one, because I do not know who will receive the hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala, the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And if I am promoting any kind of hatred towards anybody, then I become accountable for that. और सबसे best हमारे लिए क्या है? ईमान और एहतिसाब. These are the 2 things which are being given to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि मैं जब अपनी खबर में जाऊंगा तो मैं अपना जवाब दूंगा, और जब हर एक इंडिविजुअल अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो इंशाल्लाह we would be able to show a community in this part of the world where we will have the doctors, engineers, accountants, cardiologists, neurologists, best businessmen and the politician who would be able to present themselves with free from all kind of corrupt way of life, inshallah. So my humble request to all of you
to learn Quran, understand Quran and implement Quran. To learn the life of our beloved Prophet Muhammad who is the guide for the whole of mankind. And then make an intention to implement that so that you would be able to change yourself and you will be able to present yourself as a humble, kind, compassionate, merciful person, cooperative person, not the one who will be arguing, disputing, shouting, screaming. These are not the qualities of the Muslims at all. ये हमसे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो शैतानी काम है. क्योंकि कहीं पर तकब्बुर आ जाए और गुरूर आ जाए या मैंपन आ जाए या बड़ापन आ जाए तो वो क्या है, ये शैतानी अमाल है. इससे बचना है. और हर वक्त इसी वजह से हुजूर अल्लाह नबी के साथ ने फरमाया कि हर नमाज के लिए जब खड़े हो तो समझो कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो. जब खाना तनावुल करो खाओ तो समझो तो हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी लुक़मा हो. तुम जो है एक हर दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन हो, हर रात तुम्हारे लिए आखिरी रात हो. यहाँ पर मैं जब जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज वाले जब बुलाते हैं वो कहते हैं a week is too long in a political way of life. I always tell them according to the teachings of our beloved Prophet Muhammad, even 1 second is too long for me. Because I do not know when, where, in what circumstances I'm going to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये है कि हमारे अंदर ये बात पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये जितने भी मामलात हैं ये याद रखिए कि हम जो है आज टेक्नोलॉजी की वजह से आपको सीसीटीवी मिला हुआ है मगर एक वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए काफ़ी है जिसके ज़रिए से आप देखिए कि जो है हुज़ूर नबी के वसल्लम ने फरमाया था कि आई वाज ट्रांसपोर्टेड इन एन इलेक्ट्रिफाइड मैनर. अब हम क्या करते हैं लोग ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी कभी तेज चला रहे हैं कभी स्लो हो रहे हैं तो वो जब हो रहे तो सीसीटीवी लगे हुए हमारे साथ सीसीटीवी हमारे साथ लगा हुआ है हर वक्त. 2 फरिश्ते हैं जो हमारी हर चीज को देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं. अकाउंट ऑफ लाइफ हमारी मिल जाएगी. तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि हम लोग इसके तरफ ध्यान दें और इसकी तरफ हम आए कि हमारी जिंदगी जज़ाकुल्लाह. यार कमेटी वास्ता है तो तबलीग शुरू कर चलो तुसी कुछ कहना चाहते हो? नहीं यार ओके भाई उन्होंने बनाए इन्होंने आप करो ना देखो उन्होंने बनाया ठीक है मैं कह रहा हूं ना आप करें आप प्लीज देखो जी ये सब पढ़े लिखे हैं सबको पता है रूल ने क्या फरमाया अल्लाह ताला चले तबलीग उन्होंने कर दिया बस करें ना. अब उनको बुजुर्गों को क्यों शर्मिंदा करते नहीं यार प्लीज शर्मिंदा नहीं तो फिर आप सुने की बात ये है ये मुझे बताइए जो कुछ कहना चाहता है प्लीज आप करें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है आपने बुलाया ना आपके मेहमान किसी सुन लिया आपकी बात कोई भी नहीं हो रही नहीं हो रही लेडीज को नहीं पहले हमारे बुजुर्ग बोले क्या बोले मुसलमानों के लिए हम एक सूरह फातिहा है उसकी तिलावत 10 बिलियन टाइम्स अ डे होती है. आप हिसाब लगा लीजिए बल्कि ज़्यादा होती होगी मैंने कम लगाया. अगर 1.5 बिलियन मुसलमान हैं और उनमें से 500 मिलियन नहीं पढ़ते सूरह फातिहा बच्चे हैं कोई बूढ़े याद नहीं है या नहीं पढ़ते 1 बिलियन ही पढ़ते हैं और कितनी रकतें आप हिसाब लगा लीजिए अगर आप सिर्फ 10 ही से को ज़रब दे दें तो 10 बिलियन होता है. और उसमें 2 ऐसे अल्फाज हैं जिसके माने हम लोग नहीं समझे. अगर हम सूरह फातिहा के सिर्फ दो जो उसमें अल्फाज आए हैं उनको समझ लें तो हमें ये नफात फूट और ये गड़बड़ नहीं पैदा हो. तो हम अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि या अल्लाह गैरिल मग़दूबि अलैहिम पे गज़ब न करे अपना गज़ब नाजिल न करे वलद्दालीन. तो फिर हम क्यों दूसरों पे गज़ब करें ये समझने की बात है. हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हम पे गज़ब मत कर. तो ये मुसलमान अगर सिर्फ सूरह फातिहा की शुरू की तो ठीक है तारीफ हम्द व सना है
अल्लाह की और फिर उससे मतलब के लिए भी अय्या का नाम खुदो अय्या का नस्तईन बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर में जो आयत आई है, तो आयत आखिरी आयत, तो उसके दो अल्फाज बहुत अहम हैं और ये हमारी तबाही का बायस बन सकते हैं। और जब हमने ऐसा नहीं किया तो दुनिया इस्लाम उरूज पे पहुंच गई, उरूज पे पहुंच गई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि कहीं ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। अच्छा, फिर अल्लामा इकबाल का जो सबसे बुलंद तरीन शेर है, जिससे सब उलमा, सब शुराए कराम इत्तेफाक करते हैं, वो ये है कि मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप सुनिए, लेकिन वो आशिक रसूल जो भी है, आप अगर आशिक रसूल हैं, मैं आशिक रसूल हूँ, तो वो जवाब देते हैं कि लौहो कलम, लौहो कलम क्या चीज़ है? लौ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद गरज हमको नहीं कुछ लौहो कलम से दुनिया वालों, गरज हमको नहीं कुछ लौहो कलम से दुनिया वालों। अब जरा देखिए, वो आशिक रसूल ये बोलता है हमको लौहो कलम भी नहीं चाहिए, तो क्या कहता है? वो ये कहता है हमें तो मिल गए हैं वो जो है महबूब अल्लाह के, हमें तो मिल गए हैं वो जो है महबूब अल्लाह के। तो है मुसलमानों और मेरे भाई बहनों, हमारे पास तो वो चीज़ है, अल्लाह की वो नेमत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तकलीफ होती होगी ये देखकर कि हम आपस में मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अगर आपको अपने रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह वास्ते आपस में इख्तिलाफ मत पैदा कीजिए। ये है ना कि ये जो आपने जो लिखा है इसमें कि लीगल डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ बताइए। 8-10 इनको सुनने दें, फिर बाद में बात करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मेरा नाम शान मलिक है और मैं हौसलों से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये इस मसले के ऊपर हम सबको इकट्ठा किया आज, ये मस्जिद के मसले के ऊपर। ये एक छोटा मसला नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मस्जिद के पैसे, यतीमों का हक और चंदा इकट्ठा किया हुआ खाना, ये इस्लामी माशरे में एक लानत है, जिससे हमारे नबी पाक ने बहुत सख्ती से मना किया है। ये हकदारों तक पहुंचाना हम सब मुसलमानों का फर्ज है, ना कि सिर्फ एक बंदे का कि जो मस्जिद का पेड़ा उठा के बैठा हुआ है और वो खुद ही खा रहा है 8-10 आदमी। तो हम सबको मिलकर इस चीज़ के ऊपर, बजाय कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना कि इसने गलत बात कर दी, उसने अच्छी बात कर दी, नहीं, सब अच्छे हैं। अगर हम सब मिलकर बाहमी यकजाती से इस चीज़ का बेड़ा उठाएं तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो आज रेज़ हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत आसानी से हल हो सकता है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके अगर इस अलम को आप आगे लेके चलें तो मैं नहीं समझती कि ये इतनी कोई मुश्किल और बड़ी बात है। चंद लोग उधर से इकट्ठे हो जाएं, चंद लोग इधर से इकट्ठे हो जाएं, बैठ के अगर एक अमन अमान के तरीके से बात की जाए, सही तरीका यही है। तो असल तरीका तो यही है कि जिस मसले को निपटाना हो। अगर आपने मसलों को बढ़ाना है, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करने हैं, फसाद दंगे पैदा करने हैं, तो वो बहुत आसानी से है काम के, वो हो जाते हैं। चुटकियों में आप फसाद जो है वो बढ़ा सकते हैं।
یا ہمیں اخلاق دیا گیا ہے کہ آپ مسئلوں کو بڑھائیں نہ، بڑھاوا نہ دیں، کم کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد کا جتنا بھی مسئلہ ہے اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے. اور ہم آج ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. اس محفل میں تشریف لائے ہیں آپ لوگوں نے، ہمیں بلایا ہے. یہ میں بہت شکر گزار ہوں فریدہ جی کی کہ جنہوں نے آج اس موقع کے اوپر ہمیں بلایا ہے اور ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ایک ایکٹن ٹاؤن کی مسجد کے لیے ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جہاں پہ آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کر دیں تو اس سے اچھی اور کوئی ہمارے مسلمان ہونے میں بڑی بات نہیں ہوگی. میری اردو تھوڑی سی جو ہے وہ پرابلم ہے، میں کوپن ہیگن سے تعلق رکھتی ہوں تو آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا اگر میرے الفاظ میں کوئی درستگی یا غلطی کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، سب نے سمجھ لیا ہے. تو بس یہی ہے کہ آپسی جھگڑوں کو جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں. شارٹ کٹ یہی ہے کہ جھگڑوں سے کام اور مسئلے حل نہیں ہوتے. محبت، پیار اور ایمانداری بہت ضروری ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ہمیں آج کا نہیں ہے، ہمارے نبی پاک کے زمانے سے دیا جاتا ہے. اسی کے اندر سب جو ہے ہم لوگ یکجہتی کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں، وہ نہ کہ الگ الگ تفرقے اور فرقے بنا کے. فرقوں سے کام نہیں ہوتے. تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ سب یکجہتی اور مشترک ہو کر جتنے بھی کام ہیں ہمارے مسجد کے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں کمیونٹی سینٹر کے ہیں، اپنے دل و جان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم، میرا نام بلال مرزا ہے اور میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی ٹاپکس پر جو ہو رہے ہیں. تو جہاں تک پہلے تو پاکستان کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے سب پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور لیکن اب ہم یہاں انگلینڈ میں آ کر بس گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کافی عرصے سے آئے ہوئے ہیں اور اس میں بھی شامل ہوں. اور اب جو دیکھیں ہمارے یہاں بچے یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان سے، تو وہ یہاں رہتے ہیں. اس لیے ہمارے ایکچولی جو ہمارے میجر مسائل ہیں اور جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے وہ یہاں کے مسائل ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق اظہار ہے، ہماری لو ہے پاکستان سے، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں اور اسی طرح بلکہ اس پورے خطے کے مسائل ہیں کہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے. اور اصل میں جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی ارتقائی مراحل سے ہمارے لوگ بھی گزر رہے ہیں اور پاکستان بھی گزر رہے ہیں اور اس میں ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. جہاں تک اب ہمیں لیکن اکثر ایز اے ایلڈرلی لوگ کہہ دیتے ہیں اور بچے ہمارے کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو اس کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں اپنے زمانے میں ہم پاکستان میں تھے اور بھی جو بھی ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیا اور بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی جڑیں بھی کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا ہے. ہم ایلڈرلی لوگ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا اسی وجہ سے صرف. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اگر آپ سوچیں اگر پاکستان آج ایٹمی قوت نہ ہوتا تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوتے اور کتنی دفعہ پاکستان کے اوپر حملے نہ ہو چکے ہوتے. تو ہم نے ایز اے ایلڈرلی ہم اور یہ سب ایلڈرلی کی طرف سے بات کر رہا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو انگلینڈ میں ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. ہم نے پاکستان کو مضبوط ترین جتنا ہم بنا سکتے تھے ہم نے بنا دیا. تو یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات. اس لیے ہمیں سیٹسفائی ہونا چاہیے اس بات سے کہ ہم نے پاکستان کو ایک لیول تک پہنچا دیا. حالانکہ پھر میں دوبارہ دوہرا بہت لوگوں نے جڑیں بھی کاٹی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی وہاں کے مسائل ہیں. اچھا اب یہاں کی بات آ جاتی ہے تو ایز اے مسلم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر ہمارے بچے ہیں اور ان کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے اور وہ یہاں کے مسائل ہیں. اور ویسے بھی ہم صرف مسلمان پاکستانی یہاں پر نہیں ہیں، یہاں پر ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں
इंडिया से भी बहुत हैं और दूसरे मुल्क। तो हमारा अगर आप देखते हैं कंपटीशन एज ए पाकिस्तानी नहीं है बल्कि एज ए मुस्लिम है। हमारा कंपटीशन दूसरे कौमियत से है जो यहाँ पर आकर आबाद हुई है। तो हमें एज ए अपने आप को यहाँ पर एज ए मुसलमान अपने आप को ये अच्छा बनाना है। हमने इस मुल्क में अपने आप को एज ए अच्छा मुस्लिम पेश करना है। तो ये हमारे लिए हमारे सामने ये चीज़, अब सोचिए आज से 50 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा यहाँ पर, या मुसलमान होगा या हिंदू होगा या कोई और नेशनलिटी के होंगे। तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो हमने ये देखना है कि हम उनको कितनी अच्छी तरबियत देते हैं कि एज ए अच्छा इंसान ये हमारे लिए सदका जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह हमें सोचना चाहिए। बाकी जो है जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं जैसे मस्जिद के मसाइल हैं, मस्जिद के मसाइल में मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि देखिए जब हम आए थे, जो कि मैं अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पर हूँ, मैंने वो वक्त भी देखा है जब 1955 में 60 में 50 में कि लोग हमें सड़क पर हम जब जा रहे होते थे लोग हमें रोक कर अपने घर ले जाते थे, खाना खिलाते थे और हमें अच्छा समझते थे। तो अब जो है और उसको कोई यहाँ मस्जिद नहीं होती थी, अब सैकड़ों के हिसाब से मस्जिद है। तो अगर मस्जिद के अगर मसाइल हैं, अगर मस्जिद के मसाइल हैं और उसमें बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें उसी मस्जिद के ऊपर झगड़ा करने की, नहीं अल्लाह का घर है, अगर वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है जितना टाइम आप उस मस्जिद के कोई मसाइल को हल करने में, या अगर उसमें कोई फिरका आ जाता है दूसरा फिरका आ जाता है, कोई मसला नहीं है, मस्जिद है और उतना टाइम उसमें नहीं, दूसरी मस्जिद कोई मसला नहीं। तो देखिए वो प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर आप मस्जिदें बढ़ा दें, कम हो जाएगा तो लोग आपकी मस्जिद में आ जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन मस्जिद का नहीं है, मस्जिद का ये है मेन ये है कि आप अच्छा मुसलमान बने और एक अच्छा अपनी कम्युनिटी पेश करें अपने आप को, कम्युनिटी एज ए मुस्लिम कम्युनिटी। और अगर पाकिस्तान के साथ अपने आप को अटैच करके आप करेंगे तो पाकिस्तान में जिस तरह है वहाँ की आपकी रेपुटेशन कभी ठीक नहीं होगी। तो आप अपनी रेपुटेशन यहाँ एज ए मुस्लिम ठीक करें, नॉट एज ए पाकिस्तान। तो बस ये भी कहना चाहता हूँ, बाकी तो अल्लाह बेहतर करे हमारे। Excuse me, Bilal bhai, I just like to give a comment. Why don't we have one mosque, a good operating mosque, than having a mosque in each and every street? And one masjid, one mosque. And one mosque is more than enough. In one area. Exactly. यहाँ देखिए मसला ये नहीं है कि मस्जिद जो है वो आप नई ले लें या पुरानी कर लें। मसला ये है कि एक चीज़ है और मसला ये है कि जिस चीज़ का यहाँ पे ज़्यादा वो जिक्र किया जा रहा है कि लोग वो बेनिफिट जो है मस्जिद को जो आ रहे हैं, गरीबों का हक जो आ रहा है, यतीमों का हक जो यहाँ पे आ रहा है और नाजायज तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बात उसकी हो रही है, बात मस्जिद की नहीं हो रही है। बात करें ना, ये मैंने कह रही असल मसला तो ये है जो बंदा इकट्ठा आ रहा है, जिस चीज के लिए आ रहा है उस चीज के ऊपर उसको खर्च करना और खर्च होना चाहिए, ना कि वो आप अपने घरों में इस्तेमाल करें, आप अपनी जेबों में डालें या अपने रिश्तेदारों में करें और गलत जगहों पे लगाएं। नहीं, ये चंदा लोग देते हैं उन लोगों के लिए जो यतीम गरीब हकदार हैं। हकदारों तक अगर आप उनका हक ही पहुँचाएंगे तो मस्जिदें खोलने का कोई फायदा नहीं, इदारे खोलने का कोई फायदा नहीं। हक वालों के पास जब तक हक नहीं जाएगा तब तक ये इन कामों का कोई फायदा नहीं है कि आप एक मस्जिद खोल लें, दूसरी खोल लें, तीसरी खोल लें। बल्कि वो अगर ये गलत इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन चीज़ों को बंद कर दिया जाए और एक इदारा होना चाहिए बड़ा, एक बड़ा इदारा होना चाहिए और उसके अंदर बैठे होने चाहिए लोग कमेटी के, बैठ के और डिसाइड करें। घरों तक ये बातें होनी चाहिए, मस्जिदों तक ये बातें रहनी चाहिए, ना कि मीडिया के अंदर ये बातें जानी चाहिए कि जनाब ये मस्जिद में ये हो रहा है, ये हमारी बदनामी है। मीडिया को सब पता है, मीडिया जानता है, वो खबर सही देता ही नहीं है। ये हमारी अपनी बदनामी है, नहीं बन रही, ये तो हो चुकी है। इन बदनामियों को बजाय कि आप उछालें इन बातों को, बैठ के आप माजरत के साथ मतलब ये है कि मतलब सारे माशाल्लाह बहुत समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं
सब ने बात की है, लेकिन मसले का हल किसी ने भी नहीं बताया। आप ये बताएं कि ये एक मसला है और मेरी नजर में इसको इस तरह हल करना है। अगर आप ये लड़ते रहे कि अगर ये देखें, मुझे पता है हमारा प्रॉब्लम ये है, हम आपस में लड़ते ही रहेंगे। हमारा मसला ये है कि अगर मस्जिद में कोई प्रॉब्लम है, कहें कि मैं खड़ा होता हूँ, मैं इस बंदे को कोर्ट लेके जाता हूँ, आप मेरे साथ आए। ये ठीक है, लेकिन इसका जवाब मैं जरा दे दूं जी। मैं खड़ा हूँ 4-5 साल से, सारी दुनिया जानती है, कोई आगे आता नहीं, कोई मस्जिद का इमाम देने के लिए तैयार नहीं, कोई ट्रस्टी अकाउंट देने के लिए तैयार नहीं। जो आबिद साहब कहते हैं ये ऐसे नहीं मानी, कोई मानता नहीं, कोई बैठता नहीं। मतलब पेश करें, हल ये है कि जो मौजूदा निज़ाम जो ब्रिटेन के अंदर हमें इन मसाइल का सामना है, इस बंदे से हमें प्रॉब्लम है, इस बंदे को हम कैसे रिमूव करें। यहाँ हमें फंड्स का प्रॉब्लम है, फंड्स कैसे जनरेट करें। मसलक का मसला है, आप सब मिल के बैठ के ना, अगर मसलक का मसला है ना, आप सब मिल के बैठ के फैसला करते हैं कि यहाँ मसलक कोई नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान चलेगा। मसाइल का हल अगर पेश होगा ना, मसाइल का हल, मसला पेश ना करें, मसाइल का हल पेश करें, तो ये इतना बेहतरीन होगा कि जी मैं बताऊं, मजबूरी बताऊं, हल पेश करने के लिए जब भी इनके पास जाते हैं, ईमेलों में मेरी बीवी को गालियां निकाली गई हैं। आसिफ दार साहब, जिनका तारिक दार, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ईमेल पढ़ी है, अभी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आगे आऊँ और अपनी बात करूँ, मैं चाहता था कम्युनिटी बात करे। गंदी गालियाँ निकाली हुई हैं इन मौलवियों ने, इन मस्जिद वालों ने, इन ट्रस्टीज ने। आप उनको कोर्ट ले जाएं। जी, तो वो ले जाने के मैं तो ले जा ही रहा हूँ अपनी। तो सर आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। आप वसाइल पैदा करेंगे मेरे लिए? मैं खुदा की कसम, मैं कल दायर करने के लिए तैयार हूँ। अब आप सब साथ हैं मेरे। अगर लोगों ने गंदी गालियाँ निकाली हैं मेरे पास ईमेल पे, तारिक दार साहब के रिश्तेदार हैं, सुन लें, तारिक दार साहब के रिश्तेदार हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने मुझे लिखा है यू शिट स्टरर, और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इन ईमेलों में मौजूद हैं चीजें, अगर मुझे, लेकिन ये कह देते हैं कि जी तारिक दार साहब का नाम ना लो। भाई क्यों ना नाम लो? एक बात मैं इनसे माजरत से सारों से, सर मैं इस्लाम में बड़ी साफ वाज़ेह आया है कि बुराई को एक्सपोज करो, जुल्म जालिम को रोको, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे कोई गैर हो, और जालिम को कैसे रोको कि जुल्म ना करने दो, ये उसकी मदद है जालिम की। इधर मुझे कह दिया जाता है, एक मिनट जनाब, एक मिनट सुन, मुझे ये कह दिया जाता है कि जी नाम ना लो किसी का। ये क्या जालिम नहीं है जो असला डिस्ट्रीब्यूट करता है? मुझे इन्होंने कह दिया कि किसी की नाम न लो। क्या तारिक दार साहब अगर अपने सामने तकरीरें करा देते हैं तो वो मुझे कह देते हैं मेरा भाई है, तारिक दार का कसूर नहीं है। सर मुझे एक्सपोज करें, मैं क्या गलत बात करता हूँ, मुझे करें एक्सपोज, लाएं मुझे मैदान में जो गलत बात। ये क्या बात है कि नाम ना लें? क्यों ना लें? किस इस्लाम में मुझे हदीस बताइए कोई कि क्या जालिम को एक्सपोज करना, क्या जालिम के सामने बोलना, क्या जालिम के सामने बात करना, ये जिम्मेदारी नहीं है इंसान की, मुसलमानों की? ये कह के कि जी खामोश हो जाओ, उसकी बात ना करो, सियासत की ना करो, क्यों ना करो? बुराई पाकिस्तान की भी एक्सपोज करें, बुराई यहाँ की भी एक्सपोज करें, बुराई अपने जो मामलात हैं जो जाती। मुझे आज भी किसी से कोई मुखालफत नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, मेरी किसी ने कोई बेइज्जती नहीं की, ना इन्होंने। मैंने जनरल बात की है, मेरा तारिक दार से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरा भाई है, मुझे अभी भी मिलता है, मैं उस सेंटर में भी जाता हूँ, पर जो मुझे नज़र आता है मैं बताता हूँ। तो मुझे एक व्हाट्सएप उठते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार, वो काउंसलर भी हैं, वो मेयर भी हैं, वो मुझे तारीख लिखते हैं, मेरे पास ईमेल में मौजूद है, मेरे पास फेसबुक पे मौजूद है। फिर बाद में वो कहते हैं कुछ और बदलते हैं, फिर मैंने कुछ और। मैं सारी तारीख आप अपनी ईमेल छोड़ जाएं, मैं ले लूँगा, 1 महीने के बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या मैं ये खामोश रहूँ, मेरी बीवी को गालियाँ पड़े मैं खामोश रहूँ, ईमेलें आए मैं खामोश रहूँ? मैं 5 साल से खामोश हूँ। तो आप मुझे अभी भी यही कहते हैं कि यार बोलो ना, ऊंची ना बोलो, आहिस्ता बोलो। यार मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं तो खामोश हो जाऊँगा। मैं तो तारीख लिख के थक गया हूँ, मैं लोगों को ईमेल भेज के थक गया हूँ, लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सकाई साहब ने आज कह दिया मुझे, स्काई ने, कि जी वो बात नहीं होगी नशर जो सियासी होगी। क्यों नहीं? स्काई चैनल को क्या प्रॉब्लम है?
हाँ टीवी 99 को क्या प्रॉब्लम है? नहीं सियासी से मतलब ये नहीं था कि वो क्या जुल्फिकार मिर्जा मैं कहता हूँ उनके साथ फिर कहता हूँ कि जुल्फिकार नहीं थी, बिल्कुल जुल्फिकार मिर्जा हो, मैं हूँ, जिसने कानून की वायलेशन की है, जिसने असला तकसीम किया है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो चाहे लियारी गैंग हो, चाहे वो तारिक जान हो, इधर दोस्तियों का तल्लक नहीं है, इधर मेरे रिश्तेदारों का तल्लक नहीं है। जिसने ये कहते हैं जी सबूत से बात कीजिए, आपने बड़ी अच्छी बात की सर। अभी सबूत चाहिए, पाकिस्तान के कितने बिलियन खा गए हैं ये लोग, मुझे सबूत चाहिए जरदारी के लिए, आपको चाहिए तो आप ले, मैं तो सबूत नहीं दे सकता जरदारी के लिए भी सबूत। देखिए साहब इन्होंने कहा ये मसाइल मस्जिद का मिसाल का ये है कि जब हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तो एक मस्जिद होती थी पाक मस्जिद, कोई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था बिल्कुल। उसके बाद ये मौलवी ये मैं आपका नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं रहा, ये पहले लोगों ने नेक लोगों ने मस्जिद बनाई, लेकिन इनकी गलती ये है कि इन्होंने उस वक्त कमेटी क्यों नहीं बनाई? किन्होंने? जिसने भी मस्जिद शुरू की है पहले ये कमेटी नहीं बनाते थे। माल आता है, मैं एक मस्जिद को जाता हूँ, 2.5 लाख पाउंड का प्रॉफिट है, मैं एक मस्जिद के ट्रस्टी को जाता हूँ और प्लीज उसके 37 घर है, वो जो काम करता था तो मुझे वो भी पता है, उसके 37 घर हैं। ये जितने ट्रस्टीज हैं इन्होंने किसी ने बेटे के घर मकान बनाया हुआ है, कुछ बनाया, जब इनको कोई तंग करता है कि हिसाब दो, ये छोड़ते हैं, फिर कहते हैं जी उसको पकड़ो। ये सारे मुजरिम हैं। मैं आपकी एक ऐड कर दूं, तो जहाँ मेरा 37 घर है उस बंदे की 8 पेट्रोल स्टेशन सर क्यों खामोश क्यों होते हैं? और ये इसका ये है सर कि ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए कि इन सब मस्जिद को ऑडिट हो, जिस मस्जिद में हेरा फेरी है उसके ट्रस्टी को कैद हो, उनको जुर्माने किया जाए और वो उस कंट्रोल जो है ये ऑडिट के पास हो। आप इतने मतलब बात कर रहे हैं, हक से बात कर रहे हैं, उस बंदे का नाम भी ले, नाम नहीं लिया कि आप ना पब्लिश करें, नाम ले दिया इन्होंने, उसके 8 पेट्रोल स्टेशन भी हम चेक कर नहीं नाम नहीं लेना किसी का, मीडिया वालों का मेरे को ज्यादा पता है, मीडिया वालों से पैसे खाते हैं, मैं उनका मीडिया वालों का नाम नहीं लिया, मीडिया में रात भर खाना खाते हैं, आप नहीं करते लेकिन आपके मीडिया वालों को ब्लेम ना करें, मैं नाम लेकर मरना, मैं लूंगा नाम, मुझे दे, मैं लूंगा देखो टीवी पे ऐसी बात नहीं, मैं लूंगा, मुझे देखिए सर इसका लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इख्तियार दें कि ये सब मस्जिदों की ऑडिट हो, और ये जितने मौलवी है ना ये क्वालिफाइड हो, कुरान मजीद उर्दू में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी में पढ़ाया जाए ताकि समझ लगे। बिल्कुल ठीक। ये मौलवी आते हैं, मैं इमिग्रेशन में काम करता हूँ, मुझे पता है एक प्लीज ये मौलवी आते हैं कहते हैं यार मेरा 100 पाउंड शो करा दो, 100 पाउंड वहां से शो करते हैं, बच्चे 8 बच्चे से ये वीकली पैसे लेते हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं है। हेल्थ रूल है ये एक घर में आप 5 बच्चे से ज्यादा से बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जाओ, सर मैं बता दूंगा नाम, मेरे पास एक घर में सर एक घर में ब्रिटिश रूल के तहत हेल्थ रूल के तहत 5 बच्चे से ज्यादा नहीं जा सकते, एक घर में 40 बच्चे कुरान नहीं पढ़ाते हैं, अगर आग लग जाए ये बच्चे किधर जाएंगे? पुलिस वालों ने आके पकड़ा, ये खुदा के वास्ते ये बांध करो, कहते हैं ये क्या। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, वो आए तो उन्होंने जनाब एक घर लिया छोटा सा, 40-50 बच्चे पढ़ाने चुके, वो कौंसल का घर, कौंसल वालों को पता चल गया, उन्होंने छोड़ा, बाद में पता चला उनके 3 और घर हैं। तो ये सर ये इनको चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कंट्रोल है, सब मसलों का ऑडिट हो, मौलवी साहबान उनसे रिस्पेक्ट पढ़े लिखे हो, उनको अंग्रेजी आए, बच्चों को ये कुरान की उर्दू में नहीं पढ़ने देते कि बच्चों को समझ लग जाएगी, इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। बच्चों को बिल्कुल मस्जिद में ना पढ़ने भेजे, ये बच्चे घर भेजे, अगर मौलवी पढ़ा लिखा हो तो उसके पास भेजे, कुरान की पढ़ना कुरान की घर पढ़ सकते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं, मारते हैं, ये करो वो न करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑडिट करे, जो मस्जिद अच्छी है उसको कायम रहे, जो बाकी बंद कर दे। बिल्कुल ठीक है। सोना ने बात की इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजिया हमीद है और मैं पहले तो टीवी 99 को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कम्युनिटी के प्रॉब्लम और मीडिया के लेके आना।
और जहाँ तक ये प्रॉब्लम की बात है कि इलीगल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हर मस्जिद जो है वो एक चैरिटी कमीशन से जरूर रजिस्टर्ड होती है, तो ये तो चैरिटी कमीशन का काम है कि आप उनको कंप्लेन करें। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये पैसे थोड़े हैं, मैंने उसको दिया है, वो कहते हैं कि मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन हो तो फिर हम आप इन्वॉल्व होते हैं, वरना नहीं होते हैं। ये लकूना है लॉ में, मैं बता दूंगा आपको, ये लकूना है। इस तरह तो वही कि बैरिस्टर साहब वाली बात की थी, आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑडिट हो, और वहाँ पर जो है हर एक बंदे का हिसाब हो, पता चले कि चीज कहाँ पर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। बिल्कुल सही है। आपने थोड़ा नहीं बात किया, सिस्टम तो है ना जी, बिल्कुल सिस्टम वाइज चलेंगे तो तब वो चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे आपका सेंटर कोई इलेक्शन हो, चाहे किसी का हो। ये आप इनको जरा बोलने दे। जो सबसे मुझे इस वक्त जो इस टाइम का जो मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है वो एक्सट्रीमिज्म का मतलब जो प्रॉब्लम है, जिस पे हमें सबको मिलकर मुसलमानों को जो है काम करना है। मैंने अभी एक्सट्रीमिज्म पे ईलिंग काउंसिल के साथ प्रोजेक्ट पे काम किया है, एपेरेक्स प्रोजेक्ट, और उस पे 1 मिलियन की ग्रांट मिली थी ईलिंग काउंसिल को 3 साल के लिए यूरोपियन कमीशन से। पाकिस्तानी, अफगानी और सोमाली कम्युनिटी आर एक्सट्रीमिस्ट, उसके ऊपर कोई मैंने मुसलमान कोई पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट में नहीं देखा, सारे मैंने गोरे देखे। पुलिस का, ईलिंग काउंसिल का और ईलिंग CVS का प्रोजेक्ट था, और उस पे मैं चैरिटी भी रन करती हूँ, आई एम अ ट्रेनिंग सोलिसिटर प्लस आई रन डोमेस्टिक वायलेंस चैरिटी वेजीज। उस पे इन्होंने हमारी चैरिटी पे डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई, W5 प्रोडक्शन, सबसे बड़ी यहाँ की प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलके, और उसमें जो है मतलब किसी को पता ही नहीं था कि 3 साल से ईलिंग काउंसिल में मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम मुसलमान अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम में जरूर इन्वॉल्व हैं और वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। स्कॉलर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, हर बंदे को दिल की बात अगर उन्होंने कही है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए जी, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया होगा और कितने लोग यहाँ पर आए हैं जिनको कोई दर्द है, कोई फीलिंग्स है, तो वो बंदा यहाँ आया, और अगर दिल की बात कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दूसरा ये मैं कहूँगी कि हमारा इस वक्त मुसलमानों का जो मेन प्रॉब्लम है, और एपेरेक्स प्रोजेक्ट में गोरों ने मौलवियों को ट्रेनिंग दी। गोरों को इस्लाम का नहीं पता, शायद मेरे ख्याल हमसे ज्यादा पता है, तो हमारे मौलवियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी एक ऑडिट तो हो और एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर मौलवियों को आज के दौर के मुताबिक ट्रेनिंग, और हमारे सॉरी टू से इस्लाम में, इस्लाम और साइंस का कोई, मैं नहीं आजकल देखती हूँ कि कोई रिसर्च वर्क हो रहा है। कुरान में अब देखा जाए तो हर चीज उसमें साइंस है, लेकिन कुरान अब रिसर्च नहीं हम लोग कर रहे। अपने बच्चों को कुरान की एक आयत के ऊपर रिसर्च के मतलब थोड़ा सा दें कि जी इसके ऊपर आप रिसर्च करें, और नेक्स्ट टाइम अगर आप आए वीक में एक दफा वो डिबेट, उसका विजन उनका बच्चों का हो। ठीक है, कुरान पे की ट्रांसलेशन तफसीर तो है, लेकिन उसके साथ रिसर्च, इस्लाम और रूहानियत नहीं हम इस्लाम में बच्चों को सिखाते। शरीयत जरूर सिखाते हैं लेकिन रूहानियत कहीं भी नहीं है। तो इस्लाम में ये हदीस मैंने ये पढ़ी और मुझे अभी पिछले दिनों पता चला कि गोरे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो स्माइल देते हैं, हालांकि आपको जानते भी नहीं है, और हम मुसलमानों के चेहरे और स्पेशली पाकिस्तानियों के चेहरे आप देखें मुस्कुराहट नहीं है, बड़े मतलब अजूदा से हम लोग लगते हैं, तो रूहानियत नहीं है। तो अगर आपने काम करना है तो आप ये एक्सट्रीमिज्म पे करें, रूहानियत पे करें, साइंस पे करें। मुझे बड़ी वैसे हैरत होती है, वो टैक्स भेज रहे होते हैं कि तरबूज पे अल्लाह लिखा हुआ है, बकरी पे अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने नहीं देखा कि क्रिश्चियन ने, हिंदुओं ने किसी और रिलीजन में भेजे हो कि वहाँ भगवान है, वहाँ ये लिखा हुआ है। ये मौलवियों ने जो हमारा रिलीजन को खराब किया हुआ है, आप सबसे पहले मौलवियों को पकड़े। मौलवी जब तक साथ मिलता है तो ये बेईमानी होती है, क्योंकि मौलवी वन मैन शो है ना, उसने जुमा पढ़ाना है, उसी की मतलब रिस्पेक्ट होनी है। मैंने मस्जिदों के साथ काम किया एपेरेक्स प्रोजेक्ट में, यकीन करेंगे 30 साल से जो मस्जिदों में वो ट्रेनिंग, वो तफसीर और कुरान पाक की ट्रांसलेशन कर रही है, उनके अंदर जेलसी बढ़ी है। हमें मौलवियों को मतलब पकड़ना नहीं, तो वहां से जो है वो मौलवी को सब पता होता है, किसी भी मस्जिद के इमाम को सब पता है कि किसके पास क्या पैसा क्या जा रहा है, क्योंकि वो खुद खा रहा हो। बिल्कुल सही। खाने के लिए ब्रेक ले लें, खाने के लिए ब्रेक ले लें, नवाब साहब खाने के लिए ब्रेक ले लें। एक सवाल था, एक मिनट और खाने की ब्रेक है, खाना लगाने नहीं। इस वक्त मुझे इजाजत देंगे जी। आपने कहा कि मस्जिदों के इमाम खा रही हैं, इंग्लैंड में मैं आपके साथ इस बात पे आगे नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इमाम है उस बेचारे तो 600 पाउंड तनख्वाह पे जो कमेटियों ने रखा होता है। हाँ, अगर आपके कमेटियां खा रही हैं तो मैं आपसे बात नहीं, वो ठीक है। यहाँ इमाम कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद एक मुलाजिम है, उसको हमेशा खतरा रहता है कि किस वक्त ये ठीक है भाई, जाएगा, और बड़ी लिमिटेड तनख्वाह पे रखा जाता है। सर मेरी बहुत ज्यादा आपसे रिसर्च के ऊपर मैं टीवी कैमरा लेके तमाम मस्जिदों में जाता रहता हूँ। नहीं ठीक है आपकी बात। आपने फरमाया कि मौलवी पास नहीं लेते,
मैंने बेटे का निकाह पढ़ाया, मौलवी ने मेरे से 100 पाउंड लिया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मौलवी घर में आता है, बच्चों को जरा भी मारी हो बिस्मिल्लाह 100 आयतें पढ़ जाते हैं। मैं एक आपको बताऊं, सर वो खुशी सर मौलवी पैसे खाते हैं, सर खुशी में दिया वो चीज है, खुशी मस्जिद से नहीं, मस्जिद में मौलवी पैसा नहीं मान के देते हैं। निकाह पढ़ाने की फीस रखी हुई है। मौलवी ने ये निकाह पढ़ाने की फीस रखी हुई है। नहीं पैसे लेते हैं इस्लामिक निकाह पढ़ाने के लिए। यहाँ मैं भी आपसे नहीं इखलास कर लेना बाद में। मैं इमाम साहब को जानता हूँ, वो साला वो उसका वो उसकी बहन के घर वाला था, ये दोनों का साले बनुजे का रिश्ता था। वो एक पटेल बेचारे की प्लीज वो एक पटेल बेचारे की बीवी बीमार हो गई। मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ। पटेल साहब की बीवी बीमार हो गई, वो मस्जिद में गया मौलवी साहब से, मौलवी साहब या प्लीज वो मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब मेरी बीवी बीमार हुई हो, ये 1.25 लाख दफा फलानी आयत पढ़नी है। उसने कहा यार मैं तो नहीं पढ़ सकता। उसने कहा एक हदीस है इसका भी हल है। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा तुम साहब सीधे पैसे दे दो, अब कोई पढ़ देगा। उन्होंने कहा मुझे साहब पढ़ दे। उन्होंने कहा मैं 30 पाउंड घंटे का लूंगा। वो जो उसका था ना वो साला वो सुन रहा था। वो मौलवी साहब एक दिन लेट हो गए, वो दूसरे दिन गया तो उसने कहा वो यार वो तूने बीवी को अल्लाह ताला दुआ तेरी बीवी सही सलामत हो जाए। उसने कहा वो मौलवी साहब क्या कहते थे? कहता यार वो 30 पाउंड घंटा लेते थे, वो आ जाए नहीं। कहता मैं 10 पाउंड में पढ़ देता हूँ तो मुझे दे। ये हालत है आप ये नहीं इंडिविजुअल वाक़यात हैं ऐसे। नहीं एक्चुअली पता है क्या है, ये मैं मौलवी साहब की उन्होंने बात की निकाह पढ़ाने की, पैसे लेने की। अगर यही बात है तो ये किसी लॉयर के पास जाते हैं कि मैंने फलां चीज की वो एप्लीकेशन डालनी है, तो कहेगा 500 पाउंड ले आओ फिर डालूंगा। आप 500 का आप 600 दे देंगे। दाढ़ में आपके दर्द आ गया, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे, खड़े खड़े आपसे 100 पाउंड ले लेगा। तो मौलवियों को इतना वसाइल हैं। नहीं इस्लाम नहीं कहता पैसे ना। खुश होने के से पहले उसकी उजरत दे। अगर ठीक है बात खत्म। मौलवी साहब को जानते हो, बांग्लादेश से आए 5 साल हुए और 5 सालों में नवाज साहब उन्होंने अपना घर फ्री होल्ड करवा लिया। कहते जी मैं एक और घर ले रहा हूँ। 5 सालों में वर्क परमिट भी था। कहते मैं उधर ब्रिटिश हुआ उधर घर फ्री होल्ड, बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, स्पारे वगैरह पढ़ाता था। नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि सबको क्यों और कहते हैं नहीं सबको कौन कह रहा है? एक दफा वो आप अगर कहेंगे मौलवी तो हमारे हम बच्चे सुनेंगे ना, कहेंगे मौलवी के पास जो थोड़ा बहुत जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा तो ना उनको नमाज पढ़ने आएगी तो ना उनको नहीं नमाज आ जाएगी मौलवी के बगैर। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मौलवी कल का आपको सच्चा वाकया बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने, डॉक्टर ने नाम नहीं लूंगा, सिर्फ पहले ही एक्सीडेंट क्लेम के किसी वकील ने जो उनका केस भी नहीं लड़ा था 28,000 पाउंड का लेटर भेज दिया कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया था। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि कोई वकील ढूंढ दो। उनको हंसलों में वकील मिला, पाकिस्तानी, में नाम नहीं लूंगा। और कल वो मेरे आगे रो रहे थे, वकील ने कहा कागजात भेज दो, 5,000 पाउंड साथ भेजना तब मैं आपके पेपर्स पढ़ूं। अच्छा नाम क्यों नहीं लेंगे आप सर? नाम नहीं, क्यों नहीं नाम से मतलब रोकता है? ईमान का नाम नहीं एलिगेशन है ना, रिस्पेक्टेबल आदमी कह रहा है फिर शुरू वो इनको डेफिनेशन में सू कर सकता है, जिसका नाम आप लेंगे ना डेफिनेशन में सू कर सकता है। बीबी फिर बात नहीं करे बात कोई यार नाम ले हमें मैं लाऊंगा नाम बजाय उमर खानदा ये लेते